नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें। दिस इज द 10th डे ऑफ जेई मेंस रिवीजन एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। In past few years, we have found that many questions has been asked on this topic. तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2. So before discussing about conductance and conductivity, we are starting for corrosion. So we'll start with the definition of corrosion. Corrosion, oxidative deterioration of metal is known as corrosion. So when we are discussing about corrosion, rusting is a type of corrosion, right? So in corrosion, what will happen that there is oxidation of metal. So when the metal is there in metallic form, its property is different. But when it is oxidized to form some compound, the properties of compound is different from that of metal, and because of that, the metallic properties deteriorate. So that is the meaning of oxidative deterioration of metal is known as corrosion. In case of iron, uh, due to corrosion, it will form rust. Chemically, rust is Fe2O3.X H2O. It is also known as hydrated iron third oxide. In case of corrosion of silver, silver is converted into silver sulfide, which is black in color. So painting having silver, after some time, due to its oxidation, becomes black at certain spots due to this reaction, which is known as tarnishing of silver. Due to corrosion of copper, it is converted into cupric carbonate. It is green color substance called patina. So in JEE mains, they have asked that due to corrosion of copper, what is formed? So you should know that due to corrosion of copper, a green color substance called patina is cupric carbonate. So among all these type of corrosion, rusting of iron is more important for us because all the big monuments, buildings, bridge, all of them are made up of iron. So rusting of iron is very important. Because of rusting of iron, every year the whole world suffers a lot. So when we discuss about rusting of iron, rust is formed by oxidation of iron plus 2 by atmospheric oxygen. When we are discussing about rust, rust is chemically, we are saying Fe2O3.XH2O, right? So let us try to understand the mechanism that how this rust is formed. So it is a galvanic cell. It is a spontaneous reaction, a spontaneous galvanic cell reaction during rusting of iron. So suppose we have a piece of iron metal. So at certain site, there is an anode where iron metal is oxidized. So iron is oxidized to iron plus 2 by loss of 2 electron. And at certain point on this metallic plate, the atmospheric oxygen will reduce. So atmospheric oxygen and coming and reducing here, it is accepting electron. So one oxygen molecule will accept 4 electron. In acidic medium, it will form H2O in liquid state. So this is the reaction. If we balance the number of electrons in overall reaction, 4 electrons are participating. So we know that iron to iron plus 2 EMF of this is 0.44 volt. Oxidation of iron to iron plus 2 EMF value, E naught value. And this is, if you see, if water will oxidize, it is converted into oxygen gas. So in electrolysis of water, we have studied this reaction. Backward reaction EMF is minus 1.23 volt. So it is just a reverse. So this E naught value is equal to plus 1.23 volt. And if we add, we can write that E naught of this cell reaction is equal to 1.67 volt. This value is given in NCERT, and we should remember this value that for rusting of iron, the standard EMF of the cell is 1.67. So now iron is converted into iron plus 2, and this iron plus 2 is further oxidized by atmospheric oxygen to iron plus 3. So iron plus 2 is oxidized by atmospheric oxygen
to convert into Fe2O3.XH2O. You can balance this reaction because iron to iron plus 3, and oxygen, one molecule of oxygen is converted into oxide, and so it will accept 4 electrons. That's why we have multiplied here by 4, right? So in order to balance the number of electrons, we have done that. We have multiplied this by 4, and then further balancing those atoms whose oxidation number is not changing, right? So this is the formula of rust, Fe2O3.XH2O. So let us move further. What is the condition for, what are the important points regarding rusting of iron? So when we are discussing rusting of iron, moisture must be present for rusting of iron, because when we are saying that iron is converted into iron plus 2 in aqueous state, so for that medium is required, and that medium is aqueous medium. Moisture must be there. Oxygen or air must be there for rusting of iron, because we are saying that iron will oxidize and oxygen will reduce, so oxygen is required. Presence of acid promotes the rusting. We can see here that in this reaction, if we increase the concentration of H plus ion, this reaction will move in forward direction. So due to presence of H plus ion, the movement of reaction in forward direction will be more. If we add base, OH minus is consumed by base, so this reaction will move in backward direction. So we can say that in acidic medium, rusting will be more. In basic medium, rusting will be less. Corrosion will be more in acidic medium than basic medium, right? The fourth point is additional electrolytes promote rusting. So in seawater, we are using ships, right? And many parts of the ship is made up of metal, where rusting of metal is going to happen, right? So in salt water or solution, the rusting is more, because when we are discussing this rusting, this is a process in which ions are moving inside the electrolyte, ions are moving. So if we have a aqueous solution where ions are more, means the conductivity of that solution will be more, right? So the process will take place in less time. So rusting is fast in salt solution or electrolyte solution, and that is one reason that when we in hill areas where there is a lot of cold is there, and because of that on the roads सड़क पे बर्फ जम जाती है, उस बर्फ को पिघलाने के लिए हम सॉल्ट ऐड करते हैं, और उस सॉल्ट को ऐड करने की वजह से वहां जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनकी रस्टिंग ज्यादा होती है, राइट? सो इन सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट द रस्टिंग विल बी मोर. एट कॉर्नर्स रस्टिंग विल बी मोर, यस, बिकॉज कॉर्नर्स पे अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेटल का कोई पीस है, दिस इज अ पीस ऑफ मेटल, so at this corner the oxygen pressure will be more, because the cross sectional area of this corner is very small, right? So the pressure of oxygen gas will be more here, and we can see here that in this reaction, if you increase the pressure of oxygen, this reaction is moving in forward direction. So we can say that at sharp corners the rusting is more with respect to the plane area. Now we are going to discuss about conductance and conductivity. So for metallic conductor, we already know that if you have a uniform wire, for uniform wire of length L and cross-sectional area A, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross-section of this wire, right? If you increase the length, resistance is going to increase. If you increase the cross-sectional area, resistance is going to decrease. And resistance is equal to some proportionality constant, which is the property of the material, means it is the property of the wire, right? कि ये वायर किस मटेरियल से बना है, रेजिस्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू L बाई A. रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप लेंथ चेंज करोगे रेजिस्टेंस चेंज होगा. इफ यू change the amount of wire, the resistance is going to change. It is an extensive variable. रजिस्टिविटी जो है वो इंटेंसिव वेरिएबल है. अगर मैंने कॉपर मेटल लिया है तो कॉपर मेटल की रजिस्टिविटी उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, so it is intensive variable. While L by A, length upon area, it is an extensive variable. If you change the length or area, this whole thing is going to change. So we know that
in thermodynamics that if I multiply an intensive variable by an extensive variable, the resultant variable will be extensive. अभी अगर मैं इसका रिवर्स ले लूं तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इंटू ए बाई एल. So 1 upon resistance is known as conductance. The unit of resistance is ohm. So the unit of conductance is per ohm or Siemens. कैपिटल एस से डिनोट करते हैं इसको. 1 upon resistivity is known as conductivity, and the unit of conductivity, from here we get that the unit of resistivity is ohm centimeter. So unit of conductivity is per ohm per centimeter, right? Usually this unit per centimeter unit we use more in chemistry, but it can be per ohm per meter also, right? In physics SI unit is more used. There are question in JEE advanced and mains where the unit is very important. So we know that the unit of conductivity can be per ohm per centimeter and can be per ohm per meter. Right. So again, here we are saying that 1 upon resistance is extensive. So conductance is an extensive variable. Since 1 upon resistivity is intensive, conductivity is also intensive variable, and A by L is extensive variable. So when we are multiplying conductivity by extensive variable, the resultant variable will be extensive. Now we are going to use this formula of wire, uniform wire, in case of electrolytic conductor, because the purpose of this chapter is to study the conductivity of electrolytic conductor. We are not going to discuss about metallic conductor. We are discussing about electrolytic conductor. So whatever the formula we have used in metallic conductor, the same formula we are going to use in electrolytic conductor. हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. तो हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं उसको समझाने के लिए ये डायग्राम है. सो ये कुछ कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और किसी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को यूज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड्स इस तरह से रखे जाते हैं कि ये सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होना चाहिए. क्योंकि आयंस जो है, जैसे अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो जो कैटायन और एनायन है वो कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेंगे. व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड, राइट, the ions which are between this cathode and anode will participate in conduction. The ions which are behind, they will not participate, right? So ये common sense होता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या वेसल को बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड्स इस तरह से रखे जाते हैं कि लगभग सारा का सारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है. और अभी अगर मैं देखूं तो ये जो है एक वायर की तरह एक्ट कर रहा है. इस कैथोड और एनोड के बीच में आयंस होंगे जो मूव करेंगे. So it is acting like a wire. So the area of cross section of this wire is equal to area of electrolyte dipped inside, area of electrode dipped inside the electrolyte. जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है वही एरिया हम काउंट करेंगे, क्योंकि वही वो कंडक्टिविटी में वहीं पे आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऊपर वाले एरिया में कोई आयंस का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इट इज नॉट. So there are certain question in which half of the electrode is above and they will ask about cell constant or conductivity. So be careful about कि जो पार्ट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा वही कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा. L is the perpendicular distance between the two electrodes, right? तो हम ऐसे रखेंगे कि इनके बीच में perpendicular distance हो, so that it can act like a wire. So since it is acting like a wire whose length is equal to the perpendicular distance between the two electrodes and the area of the wire is equal to the area of the electrodes dipped inside the electrolyte. So the cell constant, because again cell constant क्यों होता है ये समझना जरूरी है. तो सेल कांस्टेंट इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम इस कंटेनर को यूज करेंगे, चाहे इसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट करें ऐड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे इन इलेक्ट्रोड्स को वैसे ही प्लेस करेंगे जिससे सारा का सारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है वो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो. इसलिए अगर हम कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या कंडक्टिविटी सेल रखते हैं तो उसका सेल कांस्टेंट फिक्स होता है. दिस इज फिक्स्ड, एंड इस सेल कांस्टेंट को हम कभी भी लेंथ और एरिया से मेजर नहीं करते हैं.
we measure experimentally. The cell constant is measured experimentally. So sometimes in question though, they will give that the perpendicular distance is this and area is this, right? And then we'll calculate the cell constant. But in actual, the value of cell constant is measured experimentally. तो अब वो कैसे experimentally measure करते हैं, we'll discuss about that. So now same way we are saying that resistance is equal to, ये electrolytic solution के लिए resistance is equal to resistivity L by A. और अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो हम लिख सकते हैं कि 1 upon resistance is conductance and 1 upon resistivity is conductivity. और इसको अगर रिवर्स करके हम लिखें तो G is equal to K divided by cell constant, right? This is cell constant. या हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी की वैल्यू, अगर मैं सेल कांस्टेंट को इधर ले जाऊं और जी जो है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस है, सो आई कैन से दैट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इज सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस. वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन. तो हमें ये हैबिट होनी चाहिए इस फॉर्मूले की कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस. और हमें इसकी भी हैबिट होने की चाहिए कि जनरली जब हम सेल कांस्टेंट निकालते हैं तो लेंथ सेंटीमीटर में और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में. सो सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेंटीमीटर and resistance is in ohms. So that's why when we are calculating the value of conductivity or the unit of conductivity, most of the time is per ohm per centimeter, right? So from here also थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को डिवाइड करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिव होता है. तो कंडक्टिविटी इंटेंसिव है, सेल कांस्टेंट एक्सटेंसिव है, रेजिस्टेंस इज एक्सटेंसिव वेरिएबल, राइट? तो ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, राइट? अगर हम एक मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को कंपेयर करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, सो वी नो दैट इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, conductivity is going to decrease, resistance is going to increase. Why? Because on increasing the temperature, metallic bond की बात करें तो positively charged kernels और free electron clouds, right? So electron clouds are moving between the positively charged kernels. When we increase the temperature, the vibration of these positively charged kernels are going to increase. And due to these increase in vibrations, there is hindrance in the movement of electrons because electrons are passing between them. When they will vibrate more, the chances of collision of electron with the positive charge kernels will be more, and because of that resistance will increase and conductivity will decrease. While in case of electrolytic conductor, we say that on increasing temperature, conductivity is going to increase, and the reason is that due to increase in temperature, the average kinetic energy of cation and anion in the system is going to increase, and the effect of interionic ions is going to decrease, and because of that, on increasing temperature, resistance will decrease and conductivity will increase for electrolytic conductor. In case of metallic conductor, we say that conductivity depends on the type of metal, means its crystalline structure and valence electrons, right? That will decide that what is the conductivity. While in case of electrolytic conductor, the conductivity will depend on the nature of electrolyte की weak electrolyte हमने add किया या strong electrolyte add किया है. It will depend on the concentration of electrolytic solution. It will depend on temperature. It is dependent on solvent. So many factors are there: concentration, nature of electrolyte, nature of solvent, temperature. All these decide that what is the electrolytic conductivity of a solution. So in case of metallic conductor, on increasing temperature, resistance will increase and conductivity or conductance will decrease. Conductance and conductivity are directly proportional. हम लिख रहे हैं कि G is equal to K into A by L, right? So we can say that conductivity is directly proportional to conductance. So conductance और conductivity दोनों decrease करेगी. In case of electrolytic conductor, on increasing temperature, resistance will decrease and conductivity and conductance will increase, right? Now we are going to discuss two new terms, right, which we are not discussing for metallic conductor. One is known as molar conductivity and the other is known as equivalent conductivity. Right, so I am defining that what is molar conductivity. So lambda m से इसको डिनोट करते हैं. मोलर कंडक्टिविटी बहुत सिंपल है और लॉजिकली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये चीजें ज्यादा आसान लगे। सो क्या है कि जब हम लैम्डा एम की बात करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यूज करते हैं, राइट। और इस कंडक्टर में मतलब इस सेल में कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं इसको। इस सेल में देखो दो तरह के सेल्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो सेल है, राइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि डायरेक्ट करंट हम पास करते हैं, डीसी, वी पास डीसी because we want to deposit the ions which we want, right? So in electrolysis we are using direct current, while measuring the conductivity we don't want to deposit the ions, because ये जो conductivity वो ions की वजह से, अगर ions deposit हो जाएंगे तो conductivity change हो जाएगी। हम केवल measure करना चाहते हैं कि conductivity या resistance क्या है, तो इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रखा है, मतलब ये हम जो कर रहे हैं वो कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कर रहे हैं। अब हमें ये भी प्रैक्टिकली समझना होगा कि कंडक्टिविटी सेल किसी एक मेटल कंटेनर से बना होता है, तो उसकी लिमिटेशंस होती है। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टिविटी सेल्स नहीं हो सकते। एक लैब में लिमिटेशन होती है कि कुछ ही कंडक्टिविटी सेल होंगे। हम उन कंडक्टिविटी सेल में सॉल्यूशंस को ऐड करके कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर दैट दिस इज अ कंडक्टिविटी सेल। जब भी हमें किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम उस सेल के अंदर उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं, एंड देन वी इंश्योर दैट कि वो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट इतना हो कि उसमें 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट हो, राइट। इफ वी वांट टू मेजर मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी देयर, 1 mole of that weak or strong electrolyte should be there in the electrolytic solution। और वो इलेक्ट्रोड्स ऐसे रखे हो कि वो आपस में यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो। एरिया इसका कुछ भी हो सकता है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ है, वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या फिक्स है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करेंगे और इलेक्ट्रोड्स इस तरह से हो कि वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो। तो अब कई बार ऐसा होता है कि इसकी लिमिटेशन की वजह से हम 1 मोल तो एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन की मोलारिटी कुछ भी हो सकती है और मोलारिटी अगर चेंज हुई तो कंडक्टिविटी चेंज होगी। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन है और हम इसकी मोलारिटी, मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करना चाहते हैं। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि 1 मोल ही हो। जब हम मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं तो हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐसे रखा हो कि इलेक्ट्रोड्स 1 यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो। तब जब हम इसकी कंडक्टेंस को मेजर करेंगे तो वो कंडक्टेंस जो है वो न्यूमेरिकली मोलर कंडक्टेंस के बराबर होगा। एक बार मैं फिर इस डेफिनेशन को पढ़ के समझाता हूं। Lambda m is numerically equals to conductance of a solution containing 1 mole of dissolved electrolyte such that the entire solution is placed between two electrodes which are unit distance apart। हमें पता है कि ये जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जो है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, जबकि मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम जो है वो इंटेंसिव वेरिएबल। हम लैम्डा एम के बारे में पढ़ेंगे कि इट इज इंटेंसिव वेरिएबल, ये इंटेंसिव वेरिएबल है। और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब G, 1 upon resistance, this is an extensive variable। so we are trying to understand that lambda m numerically बराबर है, lambda m is numerically equals to conductance of a solution containing 1 mole of dissolved electrolyte such that the entire solution is placed between two electrodes which are unit distance apart। this is important, unit distance apart। तो अभी जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि अगर इनके बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस है, तो वॉल्यूम और एरिया बराबर होंगे कि वो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस इनटू लेंथ। so length is unity, so we can say volume and area is equal, and we have defined that for this wire, electrolytic wire, we can say that conductance is equal to conductivity A by L। अगर हम ऊपर और नीचे L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, since L is 1, सो एल स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन।
सो नाउ वी नो दैट कि हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमने जो सॉल्यूशन इसमें ऐड किया है वो उसमें 1 मोल ही हो, लेकिन हम 1 मोल की वजह से जो कंडक्टेंस निकालेंगे वो न्यूमेरिकली लैम्डा एम के बराबर होगा। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन में n मोल है, तो n मोल की वजह से कंडक्टेंस जो है वो g है। तो अगर 1 मोल होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, g/n, राइट। तो आप ये समझ लो कि g जो है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है और नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है, लेकिन दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को अगर हम डिवाइड कर दें तो जो रिजल्टेंट वेरिएबल होगा वो इंटेंसिव वेरिएबल होगा। तो हमने ये यूनिटरी मेथड यूज किया है 1 मोल के लिए। सो वी आर सेइंग दैट कंडक्टेंस इज k इंटू वी, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू g/n। जी की वैल्यू हमने न्यूमेरिकली लिख ली, जब यूनिट डिस्टेंस अपार्ट है तो वो k इंटू वी के बराबर है, तो k इंटू वी डिवाइडेड बाई n। सो k अपॉन मोलैरिटी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वी कैन से इट इज मोलैरिटी, राइट। तो नाउ इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा एम, लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी, अगर हम k की यूनिट SI यूनिट में रखते हैं, मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू पर ओम पर मीटर में हो, और मोलारिटी को भी हम SI यूनिट में रखते हैं, यूजुअली हम रखते नहीं है मोलारिटी, हम निकालते हैं मोल पर लीटर। लीटर इज नॉट द SI यूनिट फॉर वॉल्यूम, इट इज मीटर क्यूब। तो ये ध्यान रखना, ये एरर होती है। मोलारिटी को अगर हम मोल पर मीटर क्यूब में रखेंगे तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दैट लैम्डा एम इज इक्वल टू पर ओम पर मोल मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी। अगर हमें ज्यादातर जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला यूज होता है उसको डिराइव करना, तो ये तो यहां तक तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा लैम्डा एम इज इक्वल टू k इंटू वी बाई एन, राइट। जी की जगह k इंटू वी और पर मोल के लिए n रख दिया यहाँ पे। नाउ अगर हमें दूसरा फॉर्मूला जो हम केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं, अगर हमें वो डिराइव करना है तो हमें ज्यादातर टाइम कंडक्टिविटी को पर ओम पर सेंटीमीटर में लिखते हैं, और अगर ये पर सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम हमारा ml में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो अभी अगर मुझे मोलारिटी लिखना है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। तो अब यहाँ से मैं अगर यूनिट इसकी लिखूं तो यूनिट तो हो गई पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे मोलारिटी के टर्म्स में इसको लिखना है तो यहाँ मैं ऊपर और नीचे 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाई 1000 इज वॉल्यूम इन लीटर, सो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज मोलारिटी। तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। बट ये मेरा डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई बिल्कुल सिंपल चीज है ना, हम कह रहे हैं कि लैम्डा एम जो है वो न्यूमेरिकली जी के बराबर है और जी एक्सटेंसिव वेरिएबल है। जी को अगर हम टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव वेरिएबल आएगा। तो लैम्डा एम इज जी बाई एन एंड जी कैन बी रिटन एज के बाई वी डिवाइडेड बाई एन, राइट। इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी हमने ऐसे ही डिफाइन किया है। यहाँ अल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए और इलेक्ट्रोड्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट होने चाहिए, और जब हम लैम्डा एम मेजर करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का। तो अब कोई जरूरी तो है नहीं कि जो हमने कंडक्टिविटी सेल लिया है और जो सॉल्यूशन लिया है उसमें हम ऐड करेंगे तो 1 इक्विवेलेंट ही हो, एन इक्विवेलेंट्स भी हो सकते हैं या ई इक्विवेलेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले इस पूरे सॉल्यूशन का जी निकाल लिया, और जी की वैल्यू अगर हम फॉर्मूले से डिराइव करें तो वी आर सेइंग दैट कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, वी आर सेइंग दैट जी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ए बाई एल। अगर हम ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हो गया के इंटू वी, बिकॉज एल स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो न्यूमेरिकली दिस जी की वैल्यू जो है वो के इंटू वी है। तो k इन जी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमने यहाँ पे ई से डिनोट किया है, राइट। तो ये लिख रहे हैं कि अगर हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया और उसको कंडक्टिविटी सेल में ऐड किया और वहां पे ई इक्विवेलेंट्स है, ई इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो ई इक्विवेलेंट्स की वजह से जो कंडक्टेंस है वो जी है, तो 1 की वजह से कंडक्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जी बाई ई। सो दिस इज जी बाई ई एंड जी की वैल्यू हमने रख दी के इंटू वी। अब अगर हम यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें कि के की वैल्यू पर ओम पर मीटर है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो इक्विवेलेंट्स ही कहलाएंगे, तब हम कह सकते हैं लैम्डा ई की ऐसा यूनिट हो गई पर ओम पर इक्विवेलेंट मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको
फर्दर सिंप्लीफाई करें राइट हैंड साइड में, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इज नॉर्मेलिटी, बट दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी विच वी यूज लेस इन केमिस्ट्री। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा हम यूज करते हैं, मेथड सेम है, हमने फॉर्मूला सेम ही लिखा है। अब हम वॉल्यूम, क्योंकि अगर ये कंडक्टिविटी पर ओम पर सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 इज वॉल्यूम इन लीटर, राइट। और हमने सिंप्लीफाई कर लिया। दिस फॉर्मूला इज मोर कॉमन इन केमिस्ट्री, बट वी शुड बी कंफर्टेबल बाई बोथ फॉर्मूला, इसलिए डेरिवेशन किया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर्स आते हैं और ये बहुत कॉमन है, और इसी की वजह से कई बच्चे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आप यूनिट डायमेंशन में पढ़ते हो, जैसे मान लो कि अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है और कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर, इट इज एन इंटेंसिव वेरिएबल, राइट, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर किसी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी है x पर ओम पर सेंटीमीटर, और इसको हमें पर ओम पर मीटर में कन्वर्ट करना, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में और इस सेंटीमीटर की जगह मैं मीटर में रखना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर होगा, तो ये 100 वाला फैक्टर ऊपर चला जाएगा। सो वेरी लॉजिकल, एंड यू नो बेटर यूनिट एंड डायमेंशन देन मी। सो अगर मुझे इसको पर ओम पर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर भूल गए तो आप लॉजिक लगा लेना फिजिक्स वाला। सेम वे व्हेन वी आर सेइंग दैट लैम्डा एम इज, लैम्डा एम की वैल्यू अगेन इट इज इंटेंसिव वेरिएबल, ये भी इंटेंसिव वेरिएबल है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, इज वाई पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों तो ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना, ये न्यूमरेटर में है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, दैट इज 10⁻⁻⁴। तो ये मैं यहाँ 10⁻⁻⁴ रख दूंगा, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वे व्हेन वी आर सेइंग मोलारिटी विच इज इन मोल पर लीटर, और हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये मोलारिटी की बात हो रही है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट। तो क्या होगा, हमें लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, और 1 लीटर में 10⁻⁻3, तो -3 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो मोलारिटी अगर हमें मोल पर मीटर क्यूब में चाहिए और ये मोल पर लीटर में दे रखी है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कई बार हम इसकी वजह से सवाल गलत करेंगे, और इसमें कुछ गलत करने का है नहीं। कन्वर्जन फैक्टर्स, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन फिजिक्स, राइट। नाउ important points. Conductivity of an electrolytic conductor depends on the number of charge particle per unit volume. ठीक है, कंडक्टिविटी नंबर, ये चाहे वो मेटालिक कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे। तो किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, हम उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स को चेंज नहीं किया। अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, देयर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन में हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन करने पे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल चेंज नहीं होंगे, आयंस चेंज नहीं होंगे। तो क्या होगा कि हम डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, तो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे, राइट। बट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कम नहीं हुए और वॉल्यूम बढ़ गया, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत आसान है समझना। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सिंप्लीफाई एंड राइट दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, इफ इट इज अ वीक एसिड, K/C0। तो हम जब डाइल्यूशन करते हैं, हम C0 की वैल्यू कम करते हैं तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती है। अल्फा की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, राइट। तो एक कंफ्यूजन होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम किसी हायर कंसंट्रेशन पे हैं तो नंबर ऑफ आयंस कम है, बट लोअर कंसंट्रेशन पे आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। बट व्हेन वी आर राइटिंग आयनिक इक्विलिब्रियम में, जैसे अगर ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और हमने इक्विलिब्रियम पे ये लिखा, अब H+ आयन का कंसंट्रेशन, आयंस का कंसंट्रेशन जो है वो C0 अल्फा है,
और अल्फा की वैल्यू अगर लिखते हैं √k/c0, तो यहां से आ रहा है कि जो आयंस का कंसंट्रेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c0। तो अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे। अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये स्टेटमेंट सबके लिए वैलिड है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे, कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी, राइट। बट अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, और हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया, ज्यादातर केसेस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा एम इंटेंसिव वेरिएबल है, लैम्डा एम की वैल्यू जो है ऑन डाइल्यूशन इट इज गोइंग टू इंक्रीज। कैसे पता चला? बाई डूइंग एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंटली वी नो दैट कि व्हेन वी डू डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी। अब हम ये समझना चाहते हैं कि लैम्डा एम की वैल्यू डाइल्यूशन करने पे क्यों बढ़ेगी। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए बढ़ेगी। आफ्टर नोइंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, by theory we are trying to explain it. So on dilution lambda m will increase for weak as well as a strong electrolyte. In case of weak electrolyte lambda m increases due to, तो अभी हमने lambda m को जब डिफाइन किया तो हमने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अगर इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का हो और इलेक्ट्रोड्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो, then whatever the conductance is numerically equals to molar कंडक्टिविटी। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ही है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अगर हमने इसको डाइल्यूट कर दिया तो इसका आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड का 1 मोल है और किसी कंसंट्रेशन पे एसिटिक एसिड जो है वो 5% ही डिसोसिएटेड है और डाइल्यूशन करने पे वो 10% डिसोसिएट हो गई, तो व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ आयंस, because when we are measuring molar conductivity volume is not important, we are saying that कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनका एरिया कुछ भी हो, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट होना चाहिए। तो वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उस वॉल्यूम में आयंस अगर ज्यादा होंगे तो वो आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ रही है। तो यही समझाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस ऑन डाइल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम वो तो कम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे और वॉल्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लैम्डा एम, तो हम ये कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से पता चला लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ रही है, और हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे घटेगी क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और डाइल्यूशन पे लैम्डा एम भी कम होगा। तो सिंस हमें ये रिजल्ट पता है एक्सपेरिमेंटली, तो हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन मोलारिटी इज मोर डोमिनेटिंग देन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन मोलारिटी इज मोर डोमिनेटिंग देन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। दिस इज ऑल्सो अ वे टू एक्सप्लेन द इंक्रीज इन लैम्डा एम। बट again we are saying that in case of weak electrolyte lambda m is increasing on dilution due to increase in number of ions। पहले अगर 5 कैटायन और 5 एनायन मूव कर रहे थे, अब 10 कैटायन और 10 एनायन मूव करेंगे, राइट, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम डाइल्यूशन करेंगे, व्हेन वी आर डूइंग डाइल्यूशन देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ आयंस, पहले भी जितने थे, जैसे अगर हमने 1 मोल NaCl ऐड किया तो 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, डाइल्यूशन करने पे वो वही रहेंगे। बट डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे। अगर आयंस दूर दूर हो जाएंगे तो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शंस का मतलब हो गया कि कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 एनायन आपस में रिपेल कर रहे हैं, 2 कैटायन आपस में रिपेल कर रहे हैं, अगर वो इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो आयंस मोर फ्रीली मूव कर पाएंगे एनोड और कैथोड की तरफ, तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। तो द रीजन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, और इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ की वजह से ही हमें पता चला कि मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन इज गोइंग टू इंक्रीज।
बट जब हम ये ग्राफ बना रहे हैं तो दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली, राइट? इट इज नॉट, दिस ग्राफ इज नॉट वैलिड फॉर वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट? सो इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, by experiment we found that for a strong electrolyte, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड को हम कंडक्टिविटी सेल में बहुत यूज करते हैं, और हमें एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे कंडक्टिविटी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के फॉर KCl एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस वी नो. तो अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन को चेंज करके लैम्डा एम की वैल्यू मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली. फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को मान लो यहाँ पे हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए और इन पॉइंट्स को जोड़ा, हमें लाइन मिल रही है. अब हमें पता है कि C की वैल्यू 0, मतलब बहुत इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, प्रैक्टिकली तो देयर इज नो लिमिट. सो व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर एक्सटेंडिंग दिस लाइन, and from there we can find out what is the value of limiting value of molar conductivity of a strong electrolyte. इसको हम कह सकते हैं lambda m naught. मतलब अगर concentration 0 है तो molar conductivity KCl की क्या है, by extending this graph we can find out. but इस experiment से हमें ये भी पता चला, for a weak electrolyte it is not a straight line, it is a curve and it is decreasing, its slope is more than that of a straight line. ये ज्यादा शार्प चेंज हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. तो जब तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो स्लोप है हर पॉइंट पे अलग अलग है, स्लोप इज कंटिन्यूअसली वेरिंग, एंड फ्रॉम हियर वी कैन नॉट एक्सटेंड दिस ग्राफ एक्सपेरिमेंटली, राइट? क्योंकि इसका स्लोप चेंजिंग है. तो यहां से हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, और उसी पे बेस्ड है कोलरॉस लॉ. सो एक तरह से इनिशिएशन कोलरॉस लॉ का यहीं से हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो लैम्डा एम नॉट पता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे. बट हियर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं डिबाई-हक्कल इक्वेशन, राइट? एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू, ये इंटरसेप्ट c हो गया और ये स्लोप हो गया और ये x है, अंडर रूट c इज x, y इज इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज नॉट वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिबाई-हक्कल इक्वेशन वैलिड है, अकॉर्डिंग टू विच लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a अंडर रूट c. सो दिस थिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी. अभी तक जेईई मेंस वालों ने पता नहीं क्यों नहीं पूछा, लेकिन ये पूछने वाले हैं ए के बारे में कि द वैल्यू ऑफ ए इज गोइंग टू डिपेंड ऑन व्हाट. तो ये एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ रहा हूं, ये तो एक्सपेरिमेंटल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, द इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन की बात है, द इंक्रीज इन लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूशन करने पे आयंस बढ़ रहे हैं तो उनका इफेक्ट ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसका डाइल्यूशन करने पे केवल इंटर आयनिक इंटरेक्शंस पे फर्क पड़ रहा है, आयंस पे फर्क नहीं पड़ रहा है. तो दैट इज मोर डोमिनेटिंग वी कैन से इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? द वैल्यू, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिबाई-हक्कल इक्वेशन है उसमें जो ए की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, it depends on temperature, it depends on the type of solute we are using. So यहाँ पे mention है कि for the same solvent at the same temperature, if we are using different type of electrolyte, all electrolytes of a particular type have a same value of A. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करूं लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट c का, और अगर मैं KCl और NaCl के लिए लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट c का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो इन दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा ये पैरेलल लाइंस होंगी, A की वैल्यू जो है वो सेम होगी. फॉर KCl एंड NaCl द वैल्यू विल बी सेम. All electrolytes of a particular type have the same value of A, but the value of A for magnesium sulfate, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं 2,2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 2,2 टाइप का मतलब है कि जब ये आयंस बनेंगे तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है और सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है. सो दिस इज 2,2 टाइप. सो 2,2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट के लिए A की वैल्यू ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू 2,1 टाइप, बिकॉज
On ionization, it will form calcium 2 plus ion and 2 times of Cl minus ion. So the charge on this cation is +2 and the charge on this anion is -1, right? So because of that, it is known as 2-1 type of electrolyte. And the value of A is minimum for Na, Cl, Na plus and Cl minus, 1-1 type of electrolyte, right? So 2-2 type has more value of A than 2-1 type, and it has more value of A than 1-1 type, right? So these 2 points are very important and it is expected कि JEE मेंस वाले इसको जरूर पूछेंगे. It is given in NCERT. अब कोलरॉस लॉ की बात करें, क्योंकि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें ये तो पता चल गया कि हम लैम्डा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, लैम्डा एम नॉट. वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते. बट हमें ये पता था कि डाइल्यूशन करने पे अल्फा की वैल्यू बढ़ती है. हम लिख रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन सी नॉट, और जब सी नॉट की वैल्यू जो है वो के ए के बराबर या उससे छोटी हो तो हम कहते हैं अल्फा की वैल्यू एब्सर्ड हो जाती है, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. मीन्स इस कंडीशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट इज बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो हमें पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन पे सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे. और हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखा, जैसे अगर Na प्लस है, NaCl है, NaCl है, या मैं ये कह रहा हूं कि Na2CO3 है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं. तो इनका लैम्डा एम नॉट हमने कैलकुलेट किया, लैम्डा एम नॉट फॉर दिस, और हमें ये पता चला कि लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl जो है वो लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस और लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, इन दोनों का सम है. किसी आयन का लैम्डा एम नॉट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो आयन कहां से आया है. और ये सारी बातें क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल थे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और हमने कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि इसका लैम्डा एम नॉट क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता है, तो हमने उसको देखा कि ये होना चाहिए लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, और इस तरह से हमने एक लॉजिक निकाला जो कि सही मिला. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हमें ये पता चला कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर कोई आयन है इट इज इंडिपेंडेंट कि वो वीक से आया है स्ट्रॉन्ग से आया है, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू उस आयन की फिक्स होगी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया. The law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte. तो वो वीक से आया स्ट्रॉन्ग से आया इससे मतलब नहीं है. अगर कोई आयन है तो उसका लैम्डा एम नॉट फिक्स है. बेस्ड ऑन दैट अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्वस मीडियम में ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, तो इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस x टाइम्स ऑफ A प्लस वाई एंड y टाइम्स ऑफ B माइनस एक्स. सो अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, ये बहुत कॉमन है कोलरॉस लॉ में कि हम इस फॉर्म में लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को रखते हैं. तो अभी ये आयंस कितने प्रोड्यूस कर रहा है, इसका कोफिशिएंट x है, तो हम लिखेंगे x टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ A प्लस वाई एन प्लस इसका कोफिशिएंट y है, y टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ B माइनस एक्स आयंस. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोलरॉस लॉ, राइट. बट आजकल क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जा रहे हैं, सेकेंड फॉर्म ये तो इंपॉर्टेंट है बट द सेकेंड फॉर्म इज मोर इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी हमें किसी वीक इलेक्ट्रो, क्योंकि जब हम लैम्डा एम लिखते हैं तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी. And when we are writing lambda e is equal to conductivity into 1000 divided by normality. If I divide these two, from there I can say that for any electrolyte lambda m upon lambda e की वैल्यू किसके बराबर होगी, that is equal to x factor. किसी इलेक्ट्रोलाइट का x फैक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनायन, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन इज ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 होगा, राइट. ऐसा ही होगा. तो हम ये कह सकते हैं लैम्डा एम की वैल्यू जो है वो एक्स फैक्टर इंटू लैम्डा ई है. अब एक्स फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है. तो उस केस में लैम्डा एम और लैम्डा ई बराबर होंगे, अदरवाइज लैम्डा एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा ई. सो यूजिंग दैट, अगर ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट है और इसका मैं एक्स फैक्टर निकालूं तो किसी सॉल्ट का एक्स फैक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट.
तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, x इंटू वाई, नेगेटिव भी वही है। अगर ये आयन है तो इसका एक्स फैक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दैट, सो एक्स फैक्टर विल बी y। अगर ये एनायन है, इसका एक्स फैक्टर अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दैट, दैट एक्स फैक्टर इज इक्वल टू x। तो अभी अगर मैं इस फॉर्मूले में लैम्डा m की जगह लैम्डा e के टर्म्स में लिखूं, तो लैम्डा e इंटू एक्स फैक्टर, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, लैम्डा m इज लैम्डा e इंटू एक्स फैक्टर। हियर ऑल्सो आई कैन राइट दैट कि ये फॉर्मूला अब इसमें लैम्डा e के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो x, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y इंटू लैम्डा ई नॉट ऑफ ए प्लस वाई, और यहाँ पे ये y कोफिशियंट है, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं इसका x फैक्टर x है इंटू लैम्डा ई नॉट ऑफ b माइनस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई कॉमन, राइट हैंड साइड में एक्स वाई कॉमन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी केयरफुल, आजकल ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जब हम कोलरॉस लॉ को किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा ई नॉट के टर्म्स में लिखते हैं तो कोफिशिएंट नहीं आते हैं, केवल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लैम्डा ई नॉट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा ई नॉट ऑफ एनायन b माइनस एक्स, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये वाली जो फॉर्म है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोर इन यूज, ये तो बहुत कॉमन है, राइट। सो चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। कोलरॉस लॉ पे बहुत सारे सवाल हैं, टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं कुछ सिंपल एक दो सवाल डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपको मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दोज क्वेश्चंस, बट आई हैव टू डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। The equivalent conductance of NaCl, HCl and monochloroacetate at 25 degrees Celsius and infinite dilution are 127, 426 and 89.8 per ohm centimeter square per equivalent respectively. Find lambda E infinity for monochloroacetic acid. If lambda E for 0.1 molar solution of monochloroacetic acid is 38.88, यूनिट यहां मेंशन होनी चाहिए, यूनिट वही होनी चाहिए जो ऊपर दे रखी है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। सो दिस इज द यूनिट गिवन। Then find the degree of dissociation of monochloroacetic acid in 0.1 molar solution and the Ka for monochloroacetic acid. तो अब हम जब मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो मोनोक्लोरो का मतलब हो गया ClCH2COOH। दिस इज मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, राइट। ये मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। इसका सॉल्ट क्या होना चाहिए, ClCH2COO, सोडियम सॉल्ट, राइट। एसिटेट, मोनोक्लोरो एसिटेट, सोडियम एसिटेट, राइट। पूरा नाम यहाँ नहीं है, मोनोक्लोरो सोडियम एसिटेट होना चाहिए था, शुड बी मोनोक्लोरो सोडियम एसिटेट, यहाँ मिसिंग है सोडियम। सो दैट इज इक्वल टू ClCH2COONA। NaCl के बारे में दे रखा है और HCl के बारे में दे रखा है। सो दे हैव गिवन lambda m naught of HCl, they have given lambda m naught of NaCl, they have given lambda m naught of monochlorosodium acetate, and they are asking about lambda m naught of monochloroacetic acid, right? So what we have to do, we have to apply थर्मोकेमिस्ट्री, राइट। इसमें क्या है कि अगर आप कोलरॉस लॉ लिखो तो आप वैसे लिख सकते हो, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं कि दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ क्लोरोएसिटेट आयन COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस आयन। यहाँ एक्स फैक्टर 1 है तो लैम्डा एम और लैम्डा ई दोनों सेम होंगे, इसलिए मैं लैम्डा एम लिख रहा हूँ, लैम्डा ई की वैल्यू गिवन है दिस। For this, I can write that for NaCl, this is equal to lambda m naught of Na plus ion plus lambda m naught of Cl minus ion. And for this, we can write that lambda m naught of H plus ion plus lambda m naught of Cl minus ion. And for this, we should need lambda m naught of monochloroacetate ion, monochloroacetate ion COO minus ion plus lambda m naught of H plus ion, ये चाहिए हमें। तो हमें देखना यहाँ पे वैसे ही जैसे थर्मोकेमिस्ट्री में यूज करते थे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज 2 3 एंड 4, वी हैव टू राइट इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ 2 3 4। तो अभी जैसे पहला लिखना है हमें, फर्स्ट के बारे में लिखना है
तो मोनोक्लोरो एसिटेट आयन का है, सेकंड में है, हमें कोफिशिएंट 1 चाहिए, एज इट इज लिख दिया। ऐसा करने पे Na+ हमें नहीं चाहिए, तो Na+ रिमूव करना है तो हमें 3 को माइनस करना पड़ेगा। ऐसा करने पे जो है वो Cl- आ गया, तो इसको हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, फोर्थ को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया, वी कैन से दैट लैम्डा एम नॉट, राइट। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, फॉर 1 लिख देता हूं मैं, 1 इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट फॉर 2, लैम्डा एम नॉट फॉर 2 मोनोक्लोरोसोडियम एसिटेट की वैल्यू तीसरे नंबर पे, राइट, दैट इज 89.8 -3 का मतलब हो गया NaCl, NaCl की वैल्यू पहले नंबर पे 127, तो -127 +4 HCl की वैल्यू, HCl की वैल्यू सेकेंड नंबर पे, दैट इज इक्वल टू 426। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऑन सिंप्लीफिकेशन मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूं, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये वैल्यू आ रही है 388, this is coming 388.8, something like this it is coming, right? You can check that. So this is lambda m naught. Now we are using unitary method, जब हम ये कह रहे हैं कि जब lambda m naught पे अल्फा की वैल्यू 1 है, it is 100% dissociated at infinite dilution. So when the value of lambda m naught, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर lambda m naught के बराबर है तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो अगर ये lambda m naught की वैल्यू यूनिटी है तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सो दैट इज इक्वल टू 1/λm0। और इस सॉल्यूशन में हमें पता है कि इस सॉल्यूशन का लैम्डा m जो है वो गिवन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू λm/λm0, right, λm0। so this is the value of alpha for this acid in this solution, right। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वहां से अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई 0.1। और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड वीक मोनोबेसिक एसिड है, फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड वी नो दैट इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म H+ ion and A- ion। so at equilibrium we can write C0 1 minus alpha, C0 alpha and C0 alpha। so from here we can write that the value Ka is equal to C0 alpha square 1 minus alpha। अल्फा की वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो हियर वी कैन राइट दैट C0 की वैल्यू 0.1 है, अल्फा की वैल्यू हमने 0.1 कैलकुलेट करी है, 0.1 स्क्वायर, और 1 माइनस 0.1 इज 0.9। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस you are getting that this value is equal to 10 to the power -3 divided by 0.9, 0.9 का मतलब हो गया 10/9। तो if you write this value is 10/9 into 10 to the power -3 which is equal to 1.1 into 10 to the power -3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट, एवरीबडी नो अबाउट दिस क्वेश्चन, बट आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस दैट अल्फा की वैल्यू अगर 0.05 से कम होती तो मैं यहाँ नेग्लेक्ट कर देता, लेकिन इट इज ग्रेटर देन 0.05, so that's why I am not neglecting and writing like that, right। so very common question, application of Kohlrausch law। मेंस में बहुत सारे सवाल इस पे आए, कई बार आए हैं सवाल, ठीक है। एक और मैं कॉन्सेप्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम भी यूज किया गया है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन AgA, AgA is a sparingly soluble salt, KSP is given, and AgB, it is also sparingly soluble, KSP is given, has conductivity of, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड है और पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, एंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag+ ion is given, lambda m0 of Ag+ A- ion is given, then what is the value of limiting molar conductivity of B-। एक बहुत कॉमन एरर बच्चे करते हैं, उसको मैं डिस्कस कर लूं, ठीक है, क्योंकि जब हम लिखते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब जिसकी वजह से भी सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी हो, जैसे कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में हमने पानी डाला, पहले पानी बैड कंडक्टर है लेकिन कंडक्टिविटी पानी की भी है, तो वाटर इज द सॉल्वेंट, इसकी कंडक्टिविटी होगी। फिर हमने इसमें AgA ऐड किया, AgA भी कुछ डिसॉल्व होके आयंस प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से भी कंडक्टिविटी होगी, और हमने AgB भी इसमें ऐड किया तो ये भी कुछ आयंस प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से भी कंडक्टिविटी होगी। तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी 3 लोगों की वजह से, कंडक्टिविटी ड्यू टू वाटर प्लस
कंडक्टिविटी ड्यू टू AgA प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू AgB, इन तीनों कंपोनेंट की वजह से जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इसको मैं H प्लस और OH माइनस भी लिख सकता हूं अगर दे रखा हो तो, बट यहाँ पे ये जो दोनों हैं इसमें Ag प्लस जो है वो कॉमन है, और वो पूरे सिस्टम में Ag प्लस क्या होगा वो तो सेम होगा, इसलिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस आयन, कंडक्टिविटी ऑफ A माइनस आयन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस आयन, राइट। ये है कंडक्टिविटी की वैल्यू। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या है कि वाटर बैड कंडक्टर है, तो ये वैल्यू जो है वो दे नहीं रखी होती है, मतलब ये वैल्यू नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू वैल्यूज और थ्री वैल्यूज, इसकी वजह से हम वाटर की वैल्यू दे नहीं रहे हैं। बट कई जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जब स्पैरेंगली सॉल्युबल कंपाउंड होता है तो वो वाटर की कंडक्टिविटी भी दे देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी जैसे अगर वाटर की गिवन होती तो मैं इस सॉल्ट की कंडक्टिविटी, इन दोनों सॉल्ट की वजह से कंडक्टिविटी कैलकुलेट करता, राइट। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे कंडक्टिविटी में, इस बात का ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से है। अगर सॉल्यूट बहुत स्पैरेंगली सॉल्युबल है और उसकी कंडक्टिविटी वाटर के मुकाबले एक जैसी है तो वाटर की कंडक्टिविटी देंगे, अगर ज्यादा है तो वाटर की नहीं देंगे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना क्योंकि आप अच्छे क्वेश्चंस में गलती यही करोगे। दूसरी गलती ये होती है कि जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू, हमने ये डिराइव कर लिया कि K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। जब आप कहते हो कि किसी सॉल्ट, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मैंने वाटर में पोटेशियम क्लोराइड ऐड किया, पोटेशियम क्लोराइड ऐड किया, तो यहाँ आप मोलारिटी किसकी लिख रहे हो, पोटेशियम क्लोराइड की लिख रहे हो। ये लैम्डा एम किसका लिख रहे हो, इसी का लिख रहे हो ना, लैम्डा एम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कंडक्टिविटी है वो सॉल्यूशन की नहीं लिख रहे हो आप, ये कंडक्टिविटी आप इस सॉल्ट की लिख रहे हो सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्ट के अलावा वाटर भी है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी है। समझ में आया। तो कई बार वो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन देंगे जो कि होना चाहिए कंडक्टिविटी ऑफ KCl प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अगर वाटर की कंडक्टिविटी नहीं दे रखी है इसका मतलब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और सॉल्ट की कंडक्टिविटी बराबर है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम सॉल्ट की जगह सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को रख देते हैं, बट जब अच्छे सवाल आएंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें जब हम लैम्डा एम सॉल्ट का लिख रहे हैं, मोलारिटी सॉल्ट का लिख रहे हैं, तो कंडक्टिविटी भी सॉल्ट की होनी चाहिए जो कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर होनी चाहिए इफ इट इज गिवन, ठीक है। तो ये कॉमन एरर है, इसका ध्यान रखना। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो पहली चीज तो ये है कि हमें आयनिक इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए क्योंकि इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेम सॉल्यूशन में AgA है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। तो AgA इन सॉलिड स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विथ Ag plus ion in aqueous state plus A minus ion in aqueous state। सिमिलरली हम लिख सकते हैं दूसरा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्ट का है, सेम सॉल्यूशन में दोनों सॉल्ट हैं और दे आर सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू बोथ। सो Ag plus in aqueous state plus B minus ion in aqueous state। So we have studied already that कि ये सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में भी होगा और यहाँ इसकी सॉलिबिलिटी अगर x है तो यहाँ x और x फॉर्म होगा, और ये भी सॉलिड स्टेट में होगा और यहाँ अगर इसकी सॉलिबिलिटी y है तो y एंड y, जो कॉमन आयंस है वहाँ x प्लस y लिख देते हैं। You already know about this, right? So we can write now that this is KSP1 and this is KSP2। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, x प्लस y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं KSP1 और KSP2। सो KSP1 और KSP2 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। ये Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, एंड बाय द सेम वे वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। A माइनस क्या हो गया, KSP1 डिवाइडेड बाई x प्लस y। KSP1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 3/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कैपिटल M। एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज B माइनस आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 1/2
बिकॉज KSP की वैल्यू 10⁻⁻14 है और XY का कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁻7 1/2 × 10⁻⁻7 कैपिटल M। तो ये तीनों जो केमिकल स्पीसी हैं इनका कंसंट्रेशन हमें पता चल गया, और ये कंसंट्रेशन बहुत कम है तो मैं इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लूंगा। ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। नाउ दे हैव गिवन दैट पूरे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दे रखी है, वाटर की कंडक्टिविटी नहीं दे रखी है। दे हैव नॉट गिवन द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो मैं यहाँ पे ये नेग्लेक्ट कर रहा हूं कि वाटर की कंडक्टिविटी 0 है with respect to this. Now we can put the value over here. तो when we are writing that what is conductivity of solution, ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि solution की conductivity which is equal to 375 into 10 to the power minus 10 यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विच शुड बी इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस आयन। जब हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं कि व्हाट इज लैम्डा m ऑफ Ag प्लस आयन किसी आयन के लिए, और क्योंकि ये बहुत डाइल्यूट है तो इसको लैम्डा m नॉट मान लें, तो दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस आयन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ Ag plus ion, molarity of Ag plus ion. So from here I can write that this value is equal to lambda m naught of Ag plus ion into concentration of Ag plus ion. We have calculated 2 into 10 to the power minus 7, 2 into 10 to the power minus 7 into 1000। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, अगर ये यूनिट SI में होती तो 1000 फैक्टर नहीं आता। Same way I can write that lambda m naught of A minus ion into concentration of A minus ion is 3/2 into 10 to the power minus 7 into 1000, and by the same way I can write that lambda m naught of B minus ion into concentration is 1/2 into 10 to the power minus 7 into 1000, right? तो अभी इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, lambda m naught of A minus and Ag plus is given. So we know that A minus or Ag plus का lambda m naught क्या है, and from there we can calculate the value of lambda m naught of B minus ion. ठीक है, बट मैंने जो पॉइंट बताया है कि भाई जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो lambda m k और Ag plus, राइट, ये जब लिख रहे हो तो ये Ag plus का है, ये Ag plus का है, तो ये भी Ag plus का होना चाहिए, सॉल्यूशन का नहीं होना चाहिए। यही बात समझाई है मैंने ना। तो कई बार आप गलती इस वजह से करोगे, इस बेसिक्स का ध्यान रखना। ठीक है, मेंस में ये भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में कई अच्छे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन, राइट। कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन, अगर जो बच्चे ओलंपियाड में जाते हैं उनको 10th क्लास में इसके कुछ एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। कंडक्टिविटी की मदद से हम बहुत सारी, जैसे जितने भी Ka, Kb, अल्फा, जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े हैं, उनकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्टिविटी मेजर करके ही कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और पास्ट 2-3 सालों में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में भी और एडवांस में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ कुछ वैल्यूज हैं जिसका लैम्डा m नॉट की वैल्यू लिखी है मैंने। अब ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं कंपेयर कर रहा हूं कि जितने भी मोनोवेलेंट कैटायन है उसमें H प्लस ऑफ lambda m naught of H plus ion is very large with respect to monovalent cation, ठीक है। इसी तरह से ये सब एक्वस मीडियम में, lambda m naught of OH minus is very large with respect to the other anions, monovalent anions, right। other monovalent anions के रिस्पेक्ट में lambda m naught of OH minus is very large। और इसका रीजन ये है कि H plus or OH minus is a part of aqueous medium. So because of hydrogen bonding, they can move more faster with respect to other monovalent ion, और इस वजह से इनकी वैल्यू ज्यादा है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि lambda m naught of H plus and lambda m naught of OH minus is very large with respect to the other ions or other monovalent cation और monovalent anion। दूसरी बात यह है कि इस डेटा में अगर आप देखो तो जितने भी मोनोवेलेंट कैटायन है H प्लस को छोड़ के, उनकी वैल्यू जो है ऑर्डर अगर हम बात करी जाए ना तो ये क्या है, टेंस में है, ठीक है। ये सब वैल्यूज, डिफरेंस इज देयर बट द डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज, है ना।
जबकि हम डाइवेलेंट कैटायन की बात करें तो डिफरेंस जो है ये 3 डिजिट के अंदर है ना, ये 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइवेलेंट कैटायन जनरली, नॉट ऑलवेज, बट डाइवेलेंट कैटायन का लैम्डा एम नॉट जो है वो मोनोवेलेंट कैटायन से ज्यादा होता है। यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करी गई है कि जो मोनोवेलेंट एनायन है उनका लैम्डा एम नॉट की वैल्यू सेम ऑर्डर की है, डिफरेंस इज देयर बट द ऑर्डर इज सेम, बट फॉर डाइवेलेंट एनायन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट इज ग्रेटर। तो यहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि H प्लस और OH माइनस मोनोवेलेंट कैटायन और एनायन है, और इनकी वैल्यू बाकी सारे मोनोवेलेंट कैटायन और एनायन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है कि डाइवेलेंट कैटायन का लैम्डा एम नॉट मोनोवेलेंट कैटायन से ज्यादा, डाइवेलेंट एनायन का लैम्डा एम नॉट मोनोवेलेंट एनायन से ज्यादा। ये जनरल है, हमेशा नहीं, लेकिन जनरली ऐसा ट्रू है। तो इन वैल्यूज को याद करने की जगह अगर हमें ये लॉजिक समझ में आता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर सर्टन आयंस आर आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं इस बात को समझाने के लिए। अगर हमें ये लॉजिक पता है तो अब हम कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन को डिस्कस करते हैं। कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है? It is based on the fact that during titration, one of the ion is replaced by the other ion, and these two ions differ in their molar conductivity, as a result of which the conductivity of solutions varying during the time of titration। बहुत सिंपल सी बात है, जब टाइट्रेशन हो रहा है तो एक आयन की जगह दूसरा आयन ले रहा है, या एक केमिकल स्पीसी की जगह दूसरा केमिकल स्पीसी ले रहा है, और दोनों के लैम्डा एम की वैल्यू डिफरेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लैम्डा एम की वैल्यू टाइट्रेशन के दौरान चेंज होगी। तो हम पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका हमें ध्यान रखना है कि कोनिकल फ्लास्क में कौन है और ब्यूरेट में कौन है। व्हेन वी मेजर दिस कंडक्टिविटी, ये इस तरह का कौन एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं होता है, एक हमारे पास ऐसा कुछ होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप जहां पे हम कंडक्टिविटी को मेजर कर पाए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, वहां यहाँ मैंने उसको बनाया नहीं है। और ये जो ब्यूरेट होता है वो माइक्रो ब्यूरेट होता है। माइक्रो ब्यूरेट में जो ड्रॉप है उसका साइज छोटा होता है। तो ड्रॉप बाई ड्रॉप हम ऐड कर रहे हैं और ड्रॉप का साइज छोटा है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये पूरा सिस्टम जो है, क्योंकि हम कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं तो ये अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ा होता है। ये एक फिक्स क्वेश्चन है कि अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो डीसी चाहिए, और अगर हमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस मेजर करना चाहिए तो हमें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको बात करते हैं इसमें कि जब हम HCl को ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या हो रही है। तो पहले से ही सिस्टम में NaOH बैठा हुआ है। NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं लिख देता हूं कि Na प्लस एक्वस स्टेट में है, और OH माइनस आयन इज प्रेजेंट इन एक्वस स्टेट। ये दोनों आयंस 100% डिसोसिएटेड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं HCl को ऐड कर रहा हूँ, HCl भी इसी तरह से आयोनाइज्ड होगा, बट मैं उसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि HCl आएगा, ड्रॉप आएगा और खत्म हो जाएगा ना। सो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जब टाइट्रेशन चल रहा होगा तो शुरू में ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, फाइनली ये लिमिटिंग। तो जब ये चल रहा है तब की बात कर रहा हूँ, एक ड्रॉप आया खत्म हो गया, तो मैंने लिखा नहीं कि H प्लस और Cl माइनस, क्योंकि ये बचा ही नहीं ना। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू सॉल्ट। Salt are strong electrolyte, so Na plus in aqueous state plus Cl minus ion in aqueous state, और वाटर बनेगा। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। सही बात है। तो अब कंपेयर क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क में पहले था NaOH, और जब रिएक्शन हो गई, एक ड्रॉप आया और वो खत्म हो गया, तो अब NaOH की जगह NaCl और वाटर ने ले लिया। वाटर तो बैड कंडक्टर है। वाटर अगर बैड कंडक्टर है तो चेंज क्या हो रहा है, हमें कंपेयर करना है NaOH को NaCl से, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी तो नेग्लिजिबल है। तो इसमें Na प्लस आयन तो कॉमन है, तो फिर क्या हुआ, किसने किसकी जगह ली? OH माइनस आयन की जगह Cl माइनस आयन ने ली। और हमें पता है कि OH माइनस मोनोवेलेंट एनायन में OH माइनस का लैम्डा एम बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे हम HCl को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे लेमडा एम नॉट की वैल्यू कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा NaOH जो है वो खत्म हो गया। उस टाइम पे लेमडा एम नॉट की वैल्यू मिनिमम होगी, और फिर अगर हम HCl ऐड करेंगे तो अब कोई रिएक्शन हो नहीं रही है, रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हम आयन का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते जा रहे हैं, तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल डॉट्स पॉइंट्स मिले, और हम इन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स को अब जोड़ना चाहते हैं। जब हम जोड़ देंगे इसको तो ये इस तरह का कर्व मिलेगा, ये कर्व होगा।
दिस कर्व इज देयर, राइट। तो अभी ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे OH माइनस की जगह Cl माइनस ने ले लिए, और OH माइनस का लैम्डा एम नॉट ज्यादा है और Cl माइनस का कम है, इसलिए ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है। जब ये रिएक्शन खत्म होगी, तो क्योंकि हम ड्रॉप ऐड कर रहे हैं तो गारंटी नहीं है कि हमने जो ड्रॉप ऐड किया वो एग्जैक्टली बराबर हो, इसलिए ये इस तरह का कर्व मिल रहा है। ये जो मिनिमा होगा इस कर्व पे, दैट इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंस पॉइंट। और ये मिनिमा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये दो कर्व हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लास्ट में, यहाँ यहाँ कहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ राइट हैंड साइड वाले कर्व में भी लास्ट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जहां ये आके एक दूसरे को कट करेंगे हम कहेंगे वहां मिनिमा है। सो दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंस पॉइंट। यहाँ पे ये इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज देर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। आप सॉल्यूशन में क्या कर रहे हो, H प्लस ऐड कर रहे हो और Cl माइनस आयन ऐड कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द amount of H plus ion and Cl minus ion, that's why lambda m is going to increase, lambda m की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोनिकल फ्लास्क में HClO और वॉल्यूम NaOH का ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड एंड वाई एक्सिस पे लैम्डा एम ऑफ दिस कोनिकल फ्लास्क, राइट। तो अभी अगर ऐसा है तो आपको पता है कि सॉल्यूशन में पहले HCl है, मतलब H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में है, and drop by drop we are adding NaOH. NaOH is also 100% ionized, right? But हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। जब ये रिएक्शन चल रही है तो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए मैंने लिखा नहीं इसके बारे में। अब ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन एक्वस स्टेट प्लस वाटर इन लिक्विड स्टेट। तो हमें कंपेयर क्या करना है कि टाइट्रेशन से पहले ये था, अब टाइट्रेशन के बाद या ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ये होता जा रहा है। तो इसमें कॉमन क्या है, Cl माइनस, वाटर इज अ बैड कंडक्टर, तो चेंज क्या हो रहा है, H प्लस की जगह Na प्लस ले रहा है। डेफिनेटली H प्लस की वैल्यू बहुत बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू अदर मोनोवेलेंट कैटायन। तो यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमें ये पॉइंट पता चले, इन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, राइट, ये ऐसा ऐसा कुछ मिला। और फिर हम ऐड कर रहे हैं NaOH, देयर इज नो रिएक्शन, वी आर इंक्रीजिंग Na प्लस एंड OH माइनस इन द सिस्टम, तो लैम्डा m की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ज्यादा शार्प डिक्रीज होगी, ये थोड़ा स्लो डिक्रीज होगी। इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था तो ये स्लो डिक्रीज था, ये शार्प डिक्रीज था, वो केवल लैम्डा m ऑफ H प्लस आयन है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो H प्लस आयन का लैम्डा m बहुत बड़ा है, इसलिए वो जो स्लोप की वैल्यू है वो मैं डिस्कस कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन, ठीक है, लैम्डा एम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। नाउ यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जैसे कि अभी एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड है। तो अगर वीक एसिड है, हमें आनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है कि वीक एसिड में लो कंसंट्रेशन पे भी, मतलब जनरली ऐसा होता है कि एसिड जो है वो ज्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा और फॉरवर्ड में कम जाती है। इट विल फॉर्म H प्लस आयन इन एक्वस स्टेट प्लस एसिटेट आयन इन एक्वस स्टेट। तो ये वैल्यू बहुत कम है। अगर मैंने कहा कि टोटल 100 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम में, तो 5 केटायन और 5 एनायन होंगे, 95% यही होंगे। इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन कंसंट्रेशन, ये हो सकता है कि 94 और 6 हो या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। तो एसिड का ज्यादातर फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्म है और ये नॉन कंडक्टिव फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल है, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, और ये कंडक्टिंग फॉर्म है। तो एसिटिक एसिड ज्यादातर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो कई बार जब डायग्राम बनाए जाते हैं तो वो डायग्राम्स में हमें थोड़ा समझना होता है, कॉमन सेंस चाहिए होता है कि जब हम NaOH ऐड करेंगे तो बेसिकली NaOH पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले जो पहले से ही आयोनाइज्ड है उससे रिएक्ट करेगा, बट ये रिएक्शन नेग्लिजिबल होगी। तो मैं लिख देता हूं कि पहले जब हमने ड्रॉप्स ऐड किए तो ये एसिटिक एसिड जो आयोनाइज्ड फॉर्म में है उससे ये NaOH का ड्रॉप आके रिएक्ट कर रहा है, एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। वाटर इज अ बैड कंडक्टर। तो अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें कंपेयर किससे करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, और इसमें एसिटेट आयन कॉमन है, इसका मतलब हमें H प्लस को Na प्लस से कंपेयर करना है, और H प्लस की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो क्या होगा कि बहुत कम समय के लिए लैम्डा m नॉट की वैल्यू घटेगी,
ये डिक्रीज होगी, बट ये दिस विल डिक्रीज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, बिकॉज ये बहुत कम होगा। ज्यादातर क्या होगा सिस्टम में कि ये जो नॉन कंडक्टिंग फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, it's acetic acid in molecular form is going to react with NaOH. NaOH limiting reagent है, so what will happen, there is formation of sodium acetate, acetate ion plus Na plus ion plus water। तो अब हमें कंपेयर क्या करना है कि ये जो है वो नॉन कंडक्टिंग फॉर्म है और इसकी जगह आ गया कंडक्टिंग फॉर्म। so definitely lambda m की वैल्यू ड्यूरिंग दिस टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज दिस ओनली। तो क्या होगा कि ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम बेस ऐड करते जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रिएक्शन खत्म हो गई और फिर हम NaOH ऐड करते जा रहे हैं और NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगेन लैम्डा m की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, यहां कहीं पे अगर हम ये जो दोनों ग्राफ हैं इसके अंत में अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज रिलेटेड विथ इक्विवेलेंस पॉइंट। तो कई बार जो ग्राफ है इसमें ये जो इनिशियल पोर्शन है इसको काट दिया जाता है, तो कई बार होता है और कई बार ये ग्राफ काट दिया जाता है, तो आपको क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्ट है तो ज्यादातर क्या हो रहा है कि लैम्डा m की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है और फिर ये फर्दर बढ़ रही है और हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके वी हैव फाइंड आउट दैट व्हाट इज द इक्विवेलेंट पॉइंट। तो आपको दोनों के लिए तैयार होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। ये वाला अगर ऐसा भी बनाओ तो ये बहुत, ये डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So titration between weak acid and strong base, same way you can do for weak base and strong acid, right? अब ये जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद मेंस वालों का भी ये फेवरेट है, शायद ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन मेंस वालों ने भी पूछ लिया है, तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई एडवांस। तो अब इसमें सीखना क्या है, सीखना ये है कि AgNO3 कोनिकल फ्लास्क में जो है वो आयोनाइज फॉर्म में, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट सॉल्ट्स आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दे आर 100% डिसोसिएटेड, तो ये इस फॉर्म में है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम KCl ऐड कर रहे हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये एक ड्रॉप आया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। अब हो गया क्या इसकी जगह, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो AgCl बनेगा, ये सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट है, तो इसकी कंडक्टिविटी नहीं होगी। और क्या बनेगा, KNO3 बनेगा। KNO3 जो है वो K प्लस और ये पानी में सॉल्युबल NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इफ आई हैव टू कंपेयर, ये कोनिकल फ्लास्क में पहले था, अब कोनिकल फ्लास्क में ये है, इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल है, स्पैरेंगली सॉल्युबल है, तो जो भी कंडक्टिविटी होगी वो इसकी होगी। कंपेयर किया जाए तो नाइट्रेट आयन तो कॉमन है, लैम्डा m की बात कर रहा हूँ। तो Ag प्लस और K प्लस, तो K प्लस और Ag प्लस अगर आप टेबल देखो तो दोनों में लगभग वैल्यू एक जैसी है, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन 61.72 Ag प्लस है और K प्लस 73.5 पे, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ में जो पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे ये कुछ पॉइंट्स मिले, ये जो ऑलमोस्ट सेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम है बट ऑलमोस्ट सेम है, सो दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑलमोस्ट फिक्स होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगा। और फिर उसके बाद जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और आप KCl ऐड करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही और आप K प्लस और Cl माइनस को बढ़ाते जा रहे हो, तो लैम्डा m की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। राइट, तो ये पहले कांस्टेंट और फिर इंक्रीज करेंगे। दिस इज द ग्राफ विच इज केम इन JEE एडवांस एंड आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज asked in mains also. So these type of graphs are very important, right? तो अब मैं कुल मिला के आपको बात करूं तो आपको एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक बार इसको फिक्स बता देता हूं आपको कि क्या ध्यान रखना है। ओके, तो दो तीन बातें हैं जो आप जब आप आयनिक कंडक्टिविटी जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप एक तो ये याद रखना कि जेई मेंस वाले पूछ सकते हैं कि डिबाई-हक्कल इक्वेशन में ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन सॉल्यूशन सॉल्वेंट, द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस 2 का ज्यादा 2 1 से, 2 1 का ज्यादा 1 1 से। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो लैम्डा m की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ता है और किस में ज्यादा बढ़ता है।
तो वीक में ज्यादा बढ़ता है, स्ट्रांग में कम बढ़ता है, ठीक है। और इंटर आयनिक इंटरेक्शंस कम होने की वजह से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ता है, आयंस बढ़ने की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट, ये जो मैंने आपको ग्राफ समझा है, ग्राफ में 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इज वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू अदर मोनोवेलेंट केटायन एंड एनायन। जनरली डाइवेलेंट केटायन की वैल्यू मोनोवेलेंट से ज्यादा एंड डाइवेलेंट एनायन की वैल्यू मोनोवेलेंट एनायन से ज्यादा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करेंगे, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, कन्वर्जन फैक्टर का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए। थैंक यू।